Sometimes you're not lazy, you're just overwhelmed and quietly exhausted. I mean that you have overworked yourself so much that now your body is forcing rest on you and it has become a lifestyle. And we call this state a slump because it is a slump. First of all, let's talk about why this happens. It happens because you have overworked yourself or you have worked out of your limit that now your body is forcing the rest on you. In simple words, let me tell you, तुमने एक दिन अपने आप को ओवरवर्क किया एंड तुम फिर सोए, तुमने दूसरे दिन ओवरवर्क किया. व्हेन योर ओवरवर्किंग बिकम्स योर हैबिट, देन योर बॉडी हैज़ टू have side effects or something to make you rest, and when you are in that rest, even if you try to get productive, you cannot. Why? Because you know कि अगर तुम वापस उस काम पे लगोगे तो तुम्हें वापस उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई क्यों चाहेगा किसी चीज़ को करना जब वो उससे थक के निकलेगा. इफ़ यू आर चार्जिंग समथिंग और उसमें तुम्हारी 100% एनर्जी लग रही है तो तुम उस चीज़ को उठा के फेंक दोगे, क्योंकि तुम क्यों चाहोगे कोई चीज़ तुम्हारी रोज़ रोज़ 100% एनर्जी ले. दैट सेम गोज विथ योर वर्क. अगर तुम उसी वर्क को रोज़ रोज़ कर रहे हो और तुम उसी से थक रहे हो, एट अ गिवन मोमेंट तुम्हारी बॉडी इज़ गोइंग टू बी लाइक शट अप. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव एन एडवाइस, एंड दैट इज़ कि अगर तुम अपना काम कर रहे हो देन यू शुड टेक सेलेक्टिव ब्रेक्स, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ अ डे इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर माइंड फ्रेश और योर बॉडी मूविंग. और अगर तुम्हारा गोल है कोई कि तुम्हें इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं दिन में, तो तुम उठो, वॉक करो, अपने माइंड को फ्रेश करो. एक ही जगह बैठे रहोगे तो वो सारी चीज़ें फिर ओवरवर्क करने में तुम्हें टाइम नहीं लगता. आई नो सम ऑफ यू इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम अ वर्कaholic एंड आई विल नॉट गेट अप until my work is done because I am obsessed. Okay, so obsession and working are two different things, but like, you know, it can have a negative effect on you and your body and the work linked to it. So the thing we can practice is to have breaks so you are not overworking yourself. Point number 2, how to deal with this. Usually I would recommend you to read something or do different things, but in this case when you're working or you're overworking or you're a workaholic like me, I would tell you that pick a hobby that excites you. Now I am a person who loves to do everything, like I can do singing, dancing, painting, running, leadership, book reading, everything. I love to do everything, but you have to pick a hobby that interests you, so in your free time you're just not like I'm working, I'm stressing, I'm overthinking. Because when you start overthinking is the time you have just ended all the things. The point when you get in a slump is a negative talk. When you start talking to yourself negatively is a moment जब तुम्हारा दिमाग समझ लेता है कि ठीक है भाई, अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ. एंड दैट इज़ वेयर द स्लम्प स्टार्ट्स, और इसलिए तुम वापस उस स्लम्प से प्रोडक्टिवनेस में नहीं आ पाते क्योंकि तुम वही कर रहे होते हो. You don't clock it. So dealing with slump can have 2 points. First, have a hobby, or second, have a person you can share or like, you know, talk to. Like अगर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, just call that person और बताओ उसे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. नहीं तो कोई ऐसा पर्सन या फ्रेंड या फैमिली तुम्हारे आसपास ऐसा रखो जिसको तुम हर चीज़ बता सको, ताकि तुम्हारे दिमाग में भसड़ना मत रही हो. बिकॉज ट्रस्ट मी, जिस स्लम्प से मैं अभी अभी निकली हूँ और मैं वापस रूटीन पे आई हूँ, बहुत लोगों ने मेरी मदद किया, एंड थैंक्स टू ऑल. The third thing I want to tell you is invest in yourself. When you invest in yourself, like you are really painting or doing your thing or self care, और तुम कोई ऐसी चीज़ करो जो तुम्हें बहुत पसंद है, then your brain automatically knows कि ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूँ then I can have my self care time and I can still have the life I want. Because ऐसा नहीं कि नहीं एकदम 6 घंटे काम करने से ही मुझे वो मिलेगा. नहीं, chill babe, बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास. अब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, अगर तुम्हें अपना होमवर्क 4 घंटे बाद सबमिट करना है तो प्लीज़ बैठ के सेल्फ केयर करो. नहीं, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम. प्रॉबेबली तुम होमवर्क करने के बाद सेल्फ केयर कर सकते हो, उसके पहले सेल्फ केयर करके एक मास्क लगा के बैठ सकते हो. यू जस्ट नीड टू हैव हेल्दी हैबिट्स अराउंड योर वर्क सो यू डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ एंड योर ब्रेन डजंट हेट इट. चैप्टर नंबर 2, नॉट टू सेल्फ ब्लेम. नाउ आई नो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत दिन से प्रोडक्टिव फील नहीं किया है, तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो. दैट डजेंट मीन कि तुम अपने आप को बुरी तरह से ट्रीट करोगे. बिकॉज आई नो, आई हैव बिन देयर. सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई हैव बिन देयर. मैंने ऐसा फील किया है कि जब मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी, नहीं तो कुछ नहीं करी थी, आई वॉज जस्ट लाइक मैंने तो वीडियो पोस्ट ही नहीं किया, आज का पूरा दिन खत्म हो गया. इट्स करंटली ऑलमोस्ट 5 एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज आई नो कि वीडियो शूट करना इज़ माई वर्क. इट्स नॉट समथिंग दैट डिसाइड्स माई डे कि मेरा दिन अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है.
ऑल्सो तुम ऐसा हो सकता है स्लम की वजह से एक नेगेटिव सेल्फ टॉक के पैटर्न में आ जाओ. अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि लेट्स अज्यूम कि तुम्हें कुछ करना है और तुम उसे नहीं कर पाए, तो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो कुछ भी कर नहीं पाऊंगी, मैंने ये नहीं किया, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया. नहीं, दैट इज़ द थिंग. जिस चीज़ से तुम्हें बाहर आना है उसके अंदर नहीं जाना है. व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ नेगेटिवली, सारी प्रॉब्लम्स वहीं शुरू हो चुकी है. अगर तुमने खुद को बता दिया कि तुम बुरे हो, तो पूरी दुनिया तो तुम्हें बता ही रही है तुम बुरे हो. हु इज स्टैंडिंग विथ योर सेल्फ? तुम्हें पता है कि तुम्हारे ट्रॉमास क्या है, तुम्हें पता है कि तुमने किन चीज़ों से लड़ाई किया, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे खुश रखना है खुद को, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसी लाइफस्टाइल चाहिए है. देन व्हाई आर यू गेटिंग सैड ओवर योर सेल्फ? उठो, काम करो. तुम अपने दिमाग की आवाज़ को लिटरली दबा के समझा सकते हो कि मैं डिजर्व करती हूँ सारी चीज़ें. ऑफ कोर्स आई एम अ लकी गर्ल. ओके, आई नो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई एंड आई नीड टू कूल डाउन, बट ट्रस्ट मी, यू आर वर्थ इट एज अ पर्सन. तुम काबिल हो हर एक चीज़ के जो तुमने सोची है. अगर तुमने सोची है तो तुमने वो किसी चीज़ से सोची है. तुमने ऐसे ही नहीं सोच ली कि मुझे चाहिए. नहीं, तुम उसके लिए मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो तो तुम उसे डिजर्व करते हो. ठीक है, तो प्लीज़ जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू योर सेल्फ बैडली और हेटफुली. नो, वी आर हाफ वे थ्रू द वीडियो. कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए कि नहीं नहीं अब तो करके दिखाएंगे, बट मुझे यहाँ तुम लोगों की मोटिवेशन नहीं चाहिए है. बिकॉज आज से 4-5 दिन बाद मुझे तुम्हारी मोटिवेशन काम नहीं आएगी. मुझे एक हीलिंग फैक्टर काम आएगा जो तुम्हारे अंदर है. क्योंकि तुमने आज वीडियो देखी, तुम 4-5 दिन बाद प्रॉबेबली भूल जाओगे, शायद 1 वीक बाद भूल जाओगे, बट जो चीज़ तुम्हारे साथ रहेगी वो ये रहने वाली है कि you can improve yourself by talking to yourself positively and healing yourself. Because healing doesn't mean कि तुम एक कॉपी पेन लेके रोज लेके जा रहे हो. नहीं, हीलिंग मीन्स कि तुम अपने आप को कितना पीसफुली डील करो. तुमने कुछ तोड़ दिया, ठीक है, तुम खुद पे उसको गाली दे रहे हो या तुम उसको समेटते हुए खुद को माफ़ कर रहे हो. वो होती है हीलिंग. इफ़ यू आर हीलिंग देन यू शुड नो दैट हीलिंग एक दिन में नहीं होती है. यू नीड डेज, मे बी ईयर्स, एंड आई डोंट नो, कुछ चीज़ों को हील करने में बहुत टाइम लगता है. एंड दैट इज़ वर्थ इट. अगर तुम खुद को हील करो देन एवरीथिंग इज़ वर्थ इट व्हेन इट कम्स टू यू, बिकॉज यू आर वर्थ इट. दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि मुझे तुम्हारा मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हीलिंग फैक्टर चाहिए. तुम्हारे अंदर वो फीलिंग चाहिए जो तुम्हारे अंदर है कि अब मेरे को ये करना है और मैं इसमें चाहे कितना भी टाइम लग जाए मैं करूँगी जो भी तुम लोग चाहो. हीलिंग इज सपोज टू इम्प्रूव यू एज अ पर्सन, नॉट डीमोटिवेट यू इनटू समथिंग दैट यू आर नॉट. बहुत लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं हीलिंग करूँगी और मैं ऐसी दिखूंगी, मैं ऐसी बन जाऊँगी. दैट इज़ नॉट. क्या तुम हीलिंग करके वैसा फील कर पा रहे हो जैसा तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ करेगा? देन यू आर एक्चुअली हीलिंग. नहीं तो तुम बस अपने आप को शुगर कोट कर रहे हो कि वाओ मैंने कर लिया, मैं वो बन गई, मैंने ये पहन लिया. वो तो सब चलता रहेगा यार. नाउ आई हैव रिटन दिस, जस्ट बिकॉज यू हैव बिन लेजी दैट डजेंट मीन यू डोंट डिजर्व गुड थिंग्स. अब इसका ये मतलब है जस्ट बिकॉज तुमने बहुत दिनों से काम नहीं किया, नहीं तो जस्ट बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे, अभी तुम अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फील करा रहे हो, दैट डजेंट मीन कि तुम अच्छी चीज़ें डिजर्व नहीं करते हो. दैट जस्ट मीन कि तुम्हारी बॉडी ने टाइम लिया है रेस्ट लेने का, वो रिचार्ज होने का टाइम ले रही है और तुम उसे टाइम दोगे बिना किसी गिल्ट के. बिकॉज अगर तुम अपने आप को रेस्ट करते वक्त गिल्ट दे रहे हो, दैट मीन्स दैट यू थिंक तुम रेस्ट के काबिल ही नहीं हो. दैट मीन्स यू आर नॉट वर्थ इट द रेस्ट. तुम सिर्फ काम करो, ऐसा नहीं हो सकता. यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ आई नो बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ टॉक में डाल लेंगे कि अरे मैं तो ये भी नहीं कर पाई, चलो छोड़ो ये करो. आई विल रिपीट दिस 1,000 टाइम इफ यू वॉन्ट मी टू, दैट जस्ट बिकॉज यू आर लेजी दैट डजेंट मीन यू डोंट डिजर्व गुड थिंग्स. ऑफकोर्स यू डू. इफ़ यू आर वर्किंग फॉर इट, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट, तुम उसे डिजर्व करते हो. यू कैन स्टिल बी हियर एंड हील, एंड यू कैन स्टिल बी हियर एंड हील. अब वो तुम्हारी डिसीजन है कि तुम्हें हील कैसे करना है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि अपने दिमाग की उस आवाज़ को बंद कर दो जो तुम्हें कह रही है कि तुमसे नहीं होगा. कुछ तुमसे हो सकता है. अगर तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है, अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी है. अब आई डोंट नो ये कौन सी थ्योरी होती है, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, बट ऐसी एक थ्योरी होती है, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट योर फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी हैज़ इट. सो नाउ अ स्टार पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, गाइज प्लीज़ पानी पीना मत भूलना इस उबलती गर्मी में. प्लीज़ ड्रिंक योर वाटर. अपना दिन का एटलीस्ट 3 लीटर नहीं तो 2 लीटर वाटर गोल कंप्लीट करो. तो दिस ब्रिंग्स अस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट इससे पहले मैं जाऊँ, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी समरी देना चाहती हूँ, और वो ये होने वाला है कि प्लीज़ अपनी नेगेटिव टॉक को बाजू में रखो एंड नो दैट यू डिज़र्व थिंग्स, यू डिज़र्व गुड थिंग्स. ना कभी तुम्हें रियलाइज़ होगा, तुम उठोगे, तुम करोगे और तुम फिर वापस प्रोडक्टिव हो जाओगे यार. तो
तो जस्ट रिमेंबर कि अगर तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो तुम उसे दोगे और ओवरवर्क नहीं करोगे, कॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, तुम्हें दुख होगा, कभी खुशी होगी, सब कुछ होगा, बट उन सब चीज़ों में तुम्हें ये नहीं भूलना है कि दैट यू मैटर। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, और तुमने एक्चुअली कौन सी चीज़ें इस वीडियो से सीखी, कॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।